स्टार्ट विद आप सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में, जो कि एक स्पेसिफिक डिजीज के बारे में आज सबको जानकारी देगा। जानकारी के अलावा क्या आपको ध्यान रखना है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी रहेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। तो कौन हमारे साथ हैं, ये रिवील अभी हम करने वाले हैं कि कौन हमारे साथ है जो आपको इतना ज्ञान देने वाले हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अविनाश जैन, जो कि डीएम रिमेटोलॉजिस्ट हैं। ये एसजीपीजीआई से पास आउट हैं और एक मेयो रोमेटोलॉजिस्ट हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज में, और कोई ऑप्शन नहीं है आज आज इनके होते हुए यही सबको ट्रीटमेंट देंगे। सर का ऑलमोस्ट 9 डिफरेंट अवार्ड्स एंड सेरेमनीज, पेपर पब्लिकेशन हो चुके हैं वर्ल्ड, इंटरनेशनली एंड नेशनली, एंड ही इज सो काइंड दैट ही हैज गिवन टाइम टू अस टू गिव द नॉलेज एजुकेशन, बिकॉज आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है बीमारी के बारे में जानना। प्रिस्क्रिप्शन ट्रीटमेंट पूरा नहीं करता है। दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक प्रिस्क्रिप्शन और एक बीमारी की जानकारी। तो आज सर पूरा जानकारी हमको देंगे। तो ये सर का इंट्रोडक्शन है। ये मैं सेशन मैडम को देता हूँ। मैडम, आप जस्ट गिव द इंट्रोडक्शन अबाउट द दिस ऑर्गेनाइजेशन, so that wonderful this doing the wonderful work to help all human kinds around. So hand over to you, madam. Okay, thank you so much, sir. First, good evening to all the participants in Navyug Think India Foundation. So first, I will introduce the Navyug Think India Foundation. Navyug Think India Foundation is a non-profit organization formed by a young group of people from various fields who all believe in together we can philosophy. Anti-IF registration with Ministry of Corporate Affairs. Its vision is to create knowledge-sharing opportunities and platform to facilitate with the help of expertise volunteering that resulting the positive impact for society in healthcare, environmental issues, skill development, women empowerment, and social entrepreneurship to mobilize and engage proactively in the change process through the philosophy of civic driven change. Adopt highest standard of governments to emerge as the leading knowledge and technology driven innovative and scalable international development organization. In the past 1.5 years, Navyug Think India Foundation conducted free health camps, blood donation camps, health awareness camps, and approximately 100 plus events that benefit 1 lakh plus patients. And in the next 2 years, our plan to benefit 5 lakhs plus patients via free health awareness camps. So welcome to all participants and colleagues in today's interactive session. Now, I would like to request Mr. Rajaram Yadav, sir, to initiate the events. Please be continued, sir. Thank you, ma'am. Thank you very much, madam, for this kind introduction about the this foundation, which is doing the good job for the all humankind around us. Sir, now I am requesting you to please start the session. So start with. So Dr. Avinash Jain, I am requesting you please start your session to enlighten everybody. Thank you so much. Yes. Thank you. Let me start my video first. Okay, सभी को नमस्ते and सबसे पहले congratulations to NTA Foundation for doing such great work. और आज हम क्या करेंगे कि कोशिश करूंगा मैं जितना हो सके हिंदी के शब्द इस्तेमाल करने का, बट आपको बीच में कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। एंड मैं सबसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार अपना सब माइक साइलेंट कर ले, जब भी आपको कुछ पूछना हो तब आप माइक ऑन कर सकते हैं। एंड थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, क्योंकि राजा राम जी ने एकदम ठीक कहा कि सिर्फ दवा से ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी बीमारी जो लंबी चलेगी उसमें ये बीमारी क्या है इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। और इसके बारे में इनफैक्ट मेरी 1-2 स्लाइड्स भी ऐसी हैं जो इसी चीज के बारे में आपको बताएंगी कि कैसे इस बीमारी से हम सीख सकते हैं और स्ट्रॉन्ग होके बाहर आ सकते हैं। तो टॉपिक है लूपस, एसएलई, कई सारे नाम हैं। मैंने इसका हिंदी का नाम खोजने की भी कोशिश करी। ये जहाँ मैं काम करता हूँ एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर, क्लिनिकल इम्यूनोलॉजिस्ट का मुझे पता नहीं कोई परफेक्ट हिंदी वर्ड है क्या, बट क्योंकि ऑटोइम्यून बीमारी से हम डील करते हैं तो इसको स्वप्रतिरक्षित
रोग कहा जाता है। खुद की इम्यूनिटी खुद ही के अगेंस्ट काम कर रही है। इसलिए आप देखेंगे कि जो मेरा पहला स्लाइड है, इसमें मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, ग्रेट इम्यून पावर, जिसका मतलब है कि इम्यूनिटी का पावर बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है इस बीमारी में। और हिंदी अ, ऐसे लिखी कुछ है नहीं, लूपस बोलते हैं। गूगल से पूछा तो उन्होंने कुछ लिखा कि प्रणालीगत एक प्रकार का वृक्ष। अच्छा है, वृक्ष इज अ गुड, एक अच्छा वो है कि, बट लेकिन एक्चुअली इसका मतलब ये नहीं है। और जो लूपस शब्द है वो एक लैटिन लैंग्वेज है, उसमें उसका मतलब होता है वुल्फ, यानी कि भेड़िया। तो पहले 20, 30, 40 साल पहले जब दवाइयाँ बहुत अच्छी नहीं थी, तो जैसे किसी भेड़िए ने, आप ये समझिए कि काटा हो और चेहरे पे उसकी वजह से जो लाल निशान आ जाते हैं, जिसको अब हम बटरफ्लाई रैश कहते हैं, और ये आई थिंक बहुत लोगों को इस शब्द के बारे में पता है, बटरफ्लाई रैश के बारे में। तो उससे ये शब्द उठ के आया है लूपस। आज हम सीखने की क्या कोशिश करेंगे कि क्या गलत हुआ। दिमाग में एक हमेशा सवाल आता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, लूपस क्यों होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या दवाइयाँ हमारे पास, और कैसे आप सब लोग इतने महत्वपूर्ण हैं इस बीमारी को और अच्छा करने में, मतलब रिसर्च की क्यों जरूरत है। और कई सारी धारणाएं हैं जो बीमारी के बारे में गलत है। और आखिरी में हम आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जितना वक्त बचेगा उसमें। तो ये एक व्यक्ति है जो अकेला वही भीग रहा है, उसके आसपास वाले लोग भीग नहीं रहे हैं। तो सवाल दिमाग में आता है, मैं ही क्यों, तो ये बीमारी मुझे ही क्यों, मैंने क्या गड़बड़ किया। हम ये सोचते हैं कि उस दिन कुछ खा लिया था उसके बाद ऐसा हुआ, या मैंने किसी को परेशान किया। कई तरह के सवाल आते हैं क्योंकि दिमाग, कोई भी बीमारी आती है तो यही सोचने लग जाता है कि कहाँ गड़बड़ हुई, कहाँ गड़बड़ हुई, कहाँ गड़बड़ हुई, यही दिमाग में चलता रहता है। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बना है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। ये सारे कीटाणु हैं जिनसे वो लड़ना चाहता है। पर लूपस में क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो गया है। वो क्या सोच रहा है कि चमड़ी भी मेरा हिस्सा नहीं है, ये मुंह में जो छाले हो रहे हैं ये भी मेरा हिस्सा नहीं है, इसको अटैक करो, इसको मारो। ये हमारे हमारे अगेंस्ट काम करना चालू कर देता है। तो क्या होता है, साधारण इम्यूनिटी से इम्यूनिटी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है और इस तरह के लक्षण पैदा करने लगती है। तो हम लोग को क्या करना होता है, तो ये आप जो नीले रंग का एक डंडा देखेंगे, सुइया, इसको ले जाके बीच में पीले पे लाना पड़ता है। तो दवाइयां इस तरह से दी जाती है कि ये लाल से पीला हो जाए। पर कभी कभार दवाइयों के साथ एक रिस्क रहता है कि ज्यादा भी हम इम्यूनिटी कम कर सकते हैं, इसलिए इन्फेक्शन के रिस्क का एक हमेशा एक दिमाग में डर रहता है। तो वो सारी चीजें ऐसी हैं जो हम एक बैलेंस बना के रखें, अगर दवाइयां टाइम पे लें, अपने टेस्ट कराते रहें, अच्छे से साफ सफाई रखें, हाथ धो के खाना खाएं, चीजें वॉश करके खाएं, तो इन्फेक्शन लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब ये बीमारी क्यों होती है, ये 100 साल हो गई, मैं पिछले 16-17 साल से बीमारी के बारे में सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इसका एक परफेक्ट जवाब नहीं है हमारे पास। मतलब ये जैसे मलेरिया है, हमें पता है कि मलेरिया का एक कीटाणु है, एक मच्छर काटता है, उससे हो जाता है। लूपस जो बीमारी है वो कई वजह से, कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि ये बीमारी आती है। इनफैक्ट आप में से अगर कोई इसका अच्छा आंसर जानते हैं तो बता सकते हैं हमें अभी, या प्रेजेंटेशन के एंड पे भी बता सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये शब्द है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो मतलब, जैसा मैंने बताया, खुद ही की इम्यूनिटी खुद पे अटैक कर रही है, तो उस वजह से इस तरह के लक्षण आने लगते हैं। अब वो ऐसा क्यों कर रही है, तो कुछ बोलते हैं कुछ जेनेटिक मेकअप ऐसा रहता है, कुछ जीन्स ऐसी होती हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि बचपन में या किसी समय कोई इन्फेक्शन हुआ, उस वजह से वो मिस फायरिंग करने लग जाती है, तो पता ही नहीं चलता है कि वो इन्फेक्शन निकल गया है, फिर भी वो अटैक करने लगती है। धूप में जाने से, बीड़ी पीने से ये बीमारी बढ़ती है। तो इसीलिए कई लोगों ने देखा होगा, धूप में जाते हैं तो एकदम लाल हो जाते हैं, एक ऑटोमेटिक मेकअप हो जाता है उनके चेहरे पे, इतनी अच्छी लाली आ जाती है। बट कुछ लोग के ज्यादा आ जाती है तो अच्छी नहीं लगती उन्हें। तो शरीर की जो सफेद कोशिकाएं होती हैं, जो इन्फेक्शन से लड़नी चाहिए, वो अपने आप से लड़ रही है। इसको रोकना ही हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है। और इसको रोकने के लिए कई सारी दवाइयां हैं। तो उस वजह से क्या होगा, दिमाग पे भी असर हो जाता है, किसी को फेफड़ों पे हो जाता है, कोई
थकान की तकलीफ बताता है, कोई जोड़ों के दर्द बताएगा, कोई चमड़ी में लाल लाल चकत्ते बताने लगता है, किसी को पेट की प्रॉब्लम होने लगती है। तो वो ऐसा जरूरी नहीं है सब में सब हो, किसी में हो सकता है सिर्फ जोड़ों में दर्द आए और मुंह में छाले आए, किसी में हो सकता है बीमारी सिर्फ चमड़ी तक वो रहे। तो ये क्या देखा गया है कि ये लड़कियों में, फीमेल्स में ज्यादा होती है। इनफैक्ट आप देखेंगे आज के ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स भी फीमेल हैं, और आप ये समझिए कि औरतें ज्यादा ताकतवर हैं, ज्यादा सहन शक्ति है, इसीलिए उनका इम्यून सिस्टम भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और इस तरह की बीमारी होने लगती है। ये कहाँ कहाँ प्रभावित कर सकती है? ये चमड़ी तक सीमित रह सकती है या चमड़ी के आगे भी जा सकती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सारे जो चित्र देखें यहाँ पर, दिल भी बना है, फेफड़े भी बने हैं, पेट बना है, लिवर बना है, किडनी बनी है, तो ये इनमें से किसी भी जगह असर कर सकती है। लक्षण अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, पर ज्यादातर में क्या देखा गया है कि शुरुआत में जो लक्षण आते हैं, जनरली वही लक्षण उन्हें परेशान करते हैं अगर वो दवा ना लें। तो ये सारा जो चित्र है, ये देख के घबराने की बात नहीं है कि अरे इसमें तो बड़ी सारी चीजें थी, क्योंकि अगर आप डर के रहेंगे तो फिर कई सारी बीमारियां हैं जो डर की वजह से आ सकती हैं। तो इसीलिए शांत रहें, दवा लें, मस्त रहें। ये बीमारी लाइलाज नहीं है और ना ही ये आपको जल्दी मारेगी। अगर आप दवा टाइम पे लेंगे, खुश रहेंगे, तो काफी कंट्रोल इस बीमारी का किया जा सकता है। अब इलाज क्या है? इलाज कई प्रकार का है, कई दवाइयाँ उपलब्ध हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन सबके दिमाग में रहता है, कब तक हम ये दवा लें, राइट? तो 1960 से 2011 आ चुका, 10 साल पहले तक इतनी सारी दवाइयाँ, इतना विकास हुआ है कि पहले जिस चीज़ का इलाज नहीं था, आजकल उस चीज़ का बहुत बढ़िया इलाज है। पहले अगर किडनी में बीमारी आ जाती थी, तो ये डर रहता था कि 10 से 15% लोग को बीमारी हम ठीक नहीं कर पाएँगे। बट अब 95 से ज़्यादा प्रतिशत लोगों की बीमारी हम ठीक कर सकते हैं दवाइयों से। बस होता क्या है कि 70-80% लोग बड़े आराम से कंट्रोल में आ जाते हैं। 10-15% लोगों में हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। ये एक जैसे बच्चे की जैसे है जिसको हम पाल रहे हैं। हो सकता है बच्चा बिगड़ जाए, पर मम्मी-पापा क्या करते हैं, उसको डंडा दिखा के उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। कब तक डंडा दिखाएँगे? पता नहीं, जब तक वो ठीक नहीं रहेगा तब तक दिखाएँगे। फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, हाँ, मेरा बच्चा ठीक हो गया है, मैं एक बार डंडा हटा के देखती हूँ। तो हो सकता है बच्चा ठीक रहे, हो सकता है थोड़ी शैतानी करे। तो ये जो डंडा है, ये दवाइयाँ हैं, ये योगा, एक्सरसाइज़, अच्छी आदतें हैं, जो अगर हम बना के रखेंगे तो एसएलई को कंट्रोल कर सकते हैं। अब दवा कब तक चलेगी? 1 साल, 2 साल या अगली सरकार बनने तक? ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। पर हम जनरली हम लोग क्या करेंगे, जब तक बीमारी एटलीस्ट 6 महीना, साल भर, या आपको क्या लक्षण है उसके ऊपर निर्भर करता है, वो एकदम शांत हो जाए, उसके बाद हम धीरे-धीरे करके, जैसे मैंने बताया ना वो डंडा, धीरे-धीरे करके हम हटा के देखते हैं कि बीमारी वापस तो नहीं आ रही है ना? पर आजकल बहुत दवाइयाँ आ गई हैं, इतने सारे और रिसर्च चल रहा है, कुछ ना कुछ नया आता रहता है, और क्योंकि सारे मरीज रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उससे हम नया सीखने को भी मिलता है और हम कुछ नया कर पाते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो अपने देश के लोगों में, बाहर के लोगों में अलग-अलग देखने को मिली। जैसे मैं कुछ आपसे सवाल पूछूँगा, आपके मन में कोई डर रहता है क्या? जैसे हमने क्या देखा, बाहर के लोगों को इस बीमारी के बारे में बहुत आजकल नॉलेज होने लग गई है, क्योंकि जो हम आज अब इंडिया में ऐसा कर रहे हैं कि मरीजों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बीमारी के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, तब वो आजकल शांत होने लगा है। उनको रोग की समझ होने लग गई है। पर ज़्यादातर हमारे देश में लोग अभी भी चिंता में हैं। उनको ये नहीं पता कि इस बीमारी का क्या रूप लेना है, क्योंकि नॉलेज नहीं है, टाइम नहीं मिल पाता है उनसे बात करने का। वो सोचते हैं दवा तो नुकसान ही करेगी, और फिर हमारे कोई ना कोई ताऊ, मौसी कुछ ना कुछ नुस्खा देते रहते हैं कि ये दवा इस तरह से खराब कर देगी, ये आपको डैमेज कर देगी, और दिमाग में डाउट्स आते रहते हैं। तो इसीलिए हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? हम इसको बेहतर कर सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से हमेशा पूछें, कोई भी मन में डाउट हो कि ये क्या होगा, कैसे होगा, मुझे किसी ने बोला ऐसे करने से ऐसा हो जाता है, तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है? तो जब जितना आप सवाल पूछेंगे, उतनी ही आपको जानकारी होगी, और जितनी आपको जानकारी होगी, उतना ही अच्छा आप अपने बीमारी को नियंत्रित कर पाएँगे। आप समझ पाएँगे कि दवा का कितना महत्व है, और बीमारी अच्छी कंट्रोल में रहेगी,
राइट। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है हम क्या सोचते हैं, क्या हम इसको एक बोझ मानते हैं या इसको कंट्रोल करके हम ये दिखाएं कि हम इसके साथ अच्छा रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। इनफैक्ट कई सारे मरीज यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिनकी बीमारी इतनी अच्छी कंट्रोल में, क्योंकि उन्हें देख के कह नहीं सकता उन्हें लूपस है ना। पर अगर दिमाग में ये डाउट आता रहे, ये आता रहे कि ये दवाई मुझे दुष्प्रभाव ही करेगी, तो हम शायद खुश नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि दवाइयों से मेरा जीवन संभव हो पाएगा, तो हम उसको दुश्मन नहीं मानेंगे। अगर हम ये सोचेंगे कि दवाई हमें बाधित करती है, तो हो सकता है दवा का असर भी कम हो। और इसीलिए हम लोग टेस्ट कराते हैं हर 3 महीने में, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा, बीमारी बढ़ तो नहीं रही है, ये सब चीजें हम चेक करते रहते हैं। ये चाहे एसएलई बीमारी हो या और ऑटोइम्यून बीमारी हो, इन सब में ये चीज कॉमन है। जैसे जॉगरेन, गठिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन सब में हमें ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। कई सारी ऐसी धारणाएं जो लोगों के दिमाग में है कि हम जैसे हमें क्या खाना चाहिए, क्या ना खाएं, ये हमेशा एक सबसे बड़ा सवाल रहता है। जोड़ों के दर्द के लिए लोगों को डर रहता है कि खटास खाने से बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे जरूरी है कि आप स्वस्थ खाना खाएं, साफ सुथरा खाएं, सबसे जरूरी चीज ये है। और कोई खाने का आइटम जो आपको लगता है कि आपको नुकसान कर रहा है, तो आप बंद कर सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से किसी भी खाने के लिए मनाही नहीं है ना। एक सवाल और रहता है दिमाग में, क्या ये मेरे बच्चों को आएगी, क्या मैं माँ बन सकती हूँ, क्योंकि ये औरतों में ज्यादा देखने को मिलता है। तो एक बात आप देखिए, आप अपने परिवार में देखिए, क्या आपके परिवार में 100-200 जितने भी सदस्य हैं, उतने में से कितने लोगों को एसएलई या लूपस नाम की बीमारी है? शायद मुश्किल से 100 लोग में आपको एक मिलेगा। तो बच्चे में आने की संभावना 1% के आसपास या उससे भी कम होती है। तो ये डर ना पालें। स्पेशली क्या होता है कि कुछ लोगों की शादी हुई भी होती है, कुछ लोग शादी करने जा रहे होते हैं, तो दिमाग में ये हमेशा रहता है कि हम कैसे बात करें, कैसे बताएं इस बीमारी के बारे में, आगे बच्चा कर पाएंगे कि नहीं, शादी में कोई दिक्कतें आएंगी क्या। तो इन सब चीज का आप हमेशा अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं कि क्या ये मुझे परेशान करेंगी। जैसे एक धारणा कि मैं गर्भवती हो सकती हूँ, कि हाँ आप गर्भवती हो सकते हैं, आप बच्चे भी कर सकते हैं, खाना आप हर प्रकार का खा सकते हैं, ये जानलेवा है ऐसा नहीं है। अगर दवा लेंगे तो इसका और जल्दी इलाज कराएंगे तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। दिक्कत हुई है औरतों में ये ज्यादा देखने को मिला है। कुछ लोगों को ये डर रहता है कि यौन संबंध या पास में आएंगे उससे फैल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये संक्रामक बीमारी नहीं है इन्फेक्शन की, जैसे कि एक से दूसरे से फैल जाएगी। सारे टेस्ट जरूर कराने पड़ते हैं ताकि बीमारी का पूरा निर्णय, पूरा क्या असर, कहाँ असर है, वो हम पकड़ पाए। और बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध है, ये दवा लेके आप स्वस्थ रह सकते हैं। बस हिम्मत नहीं हारनी है कि तो अब हम लोग एसएमएस में भी कई प्रकार का इसीलिए इस बीमारी पे काम करने की सोच रहे हैं, ताकि ये जो दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, ये एसएलई क्या है, ये विभिन्न रोगियों में अलग अलग क्यों होती है, मुझे क्या होगा, इन सब चीजों को हम आपको पढ़ाएंगे जब आप आएंगे। हफ्ते में एक दिन हम लूपस करने की सोच भी रहे हैं। और आप आगे बढ़कर अपने सवाल पूछ सकते हैं, मरीजों से खुद बात कर सकते हैं, जो दूसरे मरीज हैं, एक दूसरे से सीख सकते हैं कि ये बीमारी क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। अब मैं चाहूंगा कि आपके कुछ सवाल हो तो वो हम डिस्कस करें। थोड़ा बहुत मैंने आपको सिर्फ बीमारी के बारे में हल्का फुल्का बताया है, ताकि आपको ये पता रहे कि बीमारी क्यों होती है, कैसे रहती है, कब तक रहती है, दवा लेना क्यों जरूरी है, ये चीज समझनी जरूरी है इसमें। तो सर कंटिन्यू रखने के लिए अभी विल वेट क्वेश्चंस, सो एनीबॉडी कैन पोस्ट देयर क्वेश्चन। और अगर पेशेंट डायरेक्ट है तो एक बार अनम्यूट करके आप भी अपना क्वेश्चन या कुछ भी भ्रांति रिलेटेड टू डिजीज है तो आप पूछ सकते हैं अभी। हाँ सर, ये बीमारी कंटेजियस है क्या? नहीं, तो ये बीमारी, ये राजा राम जी, ये बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि बीमारी एक दूसरे से फैलती है क्या। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इम्यूनिटी की बीमारी है। इनफैक्ट आप देखेंगे पूरे परिवार में भी बहुत मुश्किल से ऐसा होता है कि एक ही परिवार में 2 लोग को लूपस मिल जाए। बहुत बहुत
अनकॉमन है, और ये उस हिसाब से भी कंटेजियस नहीं है कि माँ से बच्चे को चली जाए प्रेगनेंसी के वक्त। तो ये बिल्कुल भी ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं उसके साथ खाना नहीं खा सकती, या जिसको बीमारी है या मुंह में छाले हैं, चमड़ी में दाने हैं, हाथ में कुछ दाने हो रखे हैं, तो वो छू देगी तो मुझे कुछ हो जाएगा, या वो खाना नहीं बना देगी तो उससे बीमारी मुझे फैल जाएगी। तो ये बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। राइट सर, थैंक यू सो मच। मतलब या जो मेरे को पूछ रहे हैं लोग बाग, सबसे बड़ी बात यही पूछ रहे थे कि एक घर में है लेडीज तो बोलते हैं कि हाँ बाकी को भी हो जाएगी, कैसे रखना है। एंड दिस हाँ, क्वेश्चन केम फ्रॉम द जॉइंट फैमिली, सो दे आर इन जॉइंट बिल्कुल फैमिली। बिल्कुल, मुझे भी बहुत पूछा, मतलब बहुत पेशेंट्स ये पूछते हैं, इनफैक्ट कुछ बड़ा संकोच भी करते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जैसे जिस चीज के बारे में नॉलेज नहीं होती ना, तो आदमी कभी कभार पूछने में भी ज्यादा घबराता है, संकोच करता है। उसे लगता है कि ये सवाल गंदा तो नहीं है। कोई भी सवाल गंदा नहीं होता, पूछे, अपने डाउट्स क्लियर करें, ये बहुत जरूरी है। सर इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि ये पेशेंट जो है इम्यूनो कम्प्रोमाइज है या इम्यून से रिलेटेड है, और अभी कोविड चल रहा है, जो हर आदमी बोल रहा है कि कोविड में इन इम्यून बिल्कुल। सप्रेसिव, तो क्या ये ज्यादा ससेप्टिबल है फॉर कोविड? तो ये मेरी गलती रही कि मैंने कोविड पे डिस्कशन खुद से नहीं किया, बट थैंक यू, आपने ये सवाल पूछा। देखो, आप लोग को एक्चुअली हमें भी जान के हैरानी हुई। हम लोग ने पूरे इंडिया से अभी लगभग 500 मरीजों को, जिनको ये कोविड हुआ, उसमें कई सारे लूपस के, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज हैं, जिसका सारा डेटा इकट्ठा करके अभी हम लोग उस पे पेपर लिखने वाले हैं। तो ऐसे मरीजों को कोविड ज्यादा हुआ या ज्यादा खतरनाक हुआ, ऐसा नहीं मिला। जितना आम आदमी को जिस रेट पे हो रहा था, अगर मान लो आम आदमी में 100 में से 1 लोगों की मृत्यु हो रही थी कोविड की वजह से, उतना ही इस बीमारी में पाया गया। पर वो भी किन में? जो या तो बहुत ज्यादा उम्र के हैं, जिनको साथ में शुगर है, बीपी है, और वो भी अगर कंट्रोल ना हो। अगर लूपस, शुगर अगर आपको है, ये सब चीजें कंट्रोल में है, तो डरने की बात नहीं है। पर सावधानी बरतनी स्पेशली जरूरी है, क्योंकि आपको जैसे बाकी आम इन्फेक्शन लग सकते हैं, वैसे ये भी लग सकता है। पर ऐसा नहीं है कि ये आपको ज्यादा बुरी तरह मारेगा। ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप लोग बच्चों आप लोग सब डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, घबराओ नहीं। और आप अपना अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं और पोस्ट भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन दैट। जैसे जो फैमिली में बताया था, ज्वाइंट फैमिली ने डायरेक्ट। हम्म, सबको आ गया लूपस? किसी को कोई सवाल नहीं है? सब सीख गए आज? इतनी जल्दी सीख गए? मुझे तो 15 साल लगे सीखने में, अभी भी ऐसा लगता है आता नहीं है पूरा। एक दो डाउट तो होंगे, सवाल पूछो, जितने सवाल पूछोगे उतना अच्छा है। तो मैं सवाल पूछूं, कोई जवाब देगा? अच्छा, देखिए क्वेश्चन आया है, लूपस जेनेटिक से होता है क्या? कैन ओबेसिटी बी अ कॉज? दो बहुत ही अच्छे सवाल हैं। जेनेटिक्स, हाँ जेनेटिक्स से होता है, लेकिन इसमें क्या पाया गया है कि अगर एक जैसे जीन्स क्या होती है, जीन्स अपने हजारों तरह की होती हैं, बहुत सारी तरह की होती हैं, अलग अलग सेल्स होती हैं, जीन्स होते हैं। तो किसी एक जीन से लूपस हो जाए, ऐसा देखने को नहीं मिला है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर 10 या 15 प्रकार की जीन्स हमारी गड़बड़ चलें एक साथ, और साथ में कोई प्रकार का इन्फेक्शन, या जैसे धूप, इवन बीड़ी पीना, ये अगर होने लगे, तब जाके ये जो जीन्स खराब है, वो लूपस करा सकती है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि बच्चों में, आप प्रेग्नेंट हैं, बच्चा हो रहा है, बाकी फैमिली में है, उसमें 1% से कम ऐसी फैमिलीज होती हैं, रिस्क होता है जिनको ये लूपस हो जाए। तो यानी कि जीन्स का रोल है, बट वो अकेले अपने आप में सक्षम नहीं है ये बीमारी कराने में। ओबेसिटी कारण नहीं बन सकती, लेकिन ओबेसिटी की वजह से कई सारी दूसरी चीजें हैं जो कॉम्प्लिकेशंस के रेट बढ़ा सकती हैं। जैसे ओबेसिटी के तो अपने नुकसान हम सबको पता है,
ब्लड प्रेशर, शुगर आ सकता है, सांस की प्रॉब्लम आ सकती है। फिर दूसरी दिक्कत क्या होती है, हमारी एक फेवरेट दवा है इस बीमारी में, स्टेरॉइड, प्रेडनिसोलोन या ओमनाकॉटिल जिसे कहते हैं, वो अभी भी इसके लिए बहुत अच्छी दवा है। जनरली हम कोशिश करते हैं कि वो कम से कम मात्रा में दी जाए, जितने लक्षण है उस हिसाब से दी जाए और जितने कम पे ला सकते हैं लाया जाए। पर ये स्टेरॉइड या ओमनाकॉटिल लेने से मोटापा बढ़ सकता है, भूख ज्यादा बढ़ सकती है, इन्फेक्शन के रेट बढ़ सकते हैं। पर एक बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर बीमारी कंट्रोल नहीं करी तो वो तो 100% नुकसान करेगी। दवाइयां चाहे 10% लोगों को नुकसान करे। इसीलिए हम हर बार साइड इफेक्ट्स के लिए चेक करते हैं। जब आप आते हैं तो शुगर है कि नहीं ये सवाल पूछते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, कोशिश करते हैं कि सबका वजन नापे, ताकि वजन बढ़ रहा है कि नहीं ये हम मॉनिटर कर पाए। तो किस किस के घर में एक से ज्यादा लोगों को लूपस है किसी को, एक से ज्यादा लोगों को? नहीं? लूपस में शरीर के दूसरे अंगों पर भी असर करता है क्या? तो हाँ पुष्पा जी, लूपस शरीर के बहुत सारे अंगों पे असर कर सकता है। जैसे मैंने वो एक चित्र दिखाया था कि ये दिमाग पे भी आ सकता है, ये चमड़ी पे, मुंह में छाले, किडनी पर, लिवर पे, मांसपेशियों पे, जोड़ों में, हृदय पर। तो बड़ी लंबी सी लिस्ट है। अब आपको लगेगा कि आपने तो शरीर के सारे अंग गिना दिए। तो एक्चुअली लूपस में यही प्रॉब्लम है कि शरीर के कोई से भी अंग में असर कर सकता है। पर अच्छी बात क्या है, सबके सबका इलाज है। सबसे जरूरी क्या है, टाइम पे आप हमारे पास आ जाएं, टाइम पे दवा चालू हो जाए। दूसरी चीज, ज्यादातर लोगों में ये देखा गया है कि अगर उसने 2 या 3 अंगों पर असर किया है तो जनरली असर वहां पर ज्यादा रहता है। ऐसा बहुत कम होता है कि 10 साल तक एक जगह थी बीमारी, अब अचानक से कोई नया अंग पकड़ के आ गई। ऐसा कम देखा गया है। तो अगर किसी को जोड़ों में दर्द था तो जनरली वापस अगर बीमारी आती है तो जोड़ों के दर्द के साथ ही आती है, या चमड़ी में आती है तो वापस चमड़ी में आती है। हाँ, ये बीमारी बच्चों में भी हो सकती है। देखो सबसे ज्यादा ये 20, 30, 40 साल की जो फीमेल्स हैं यानी कि औरतें हैं उनमें देखा गया है। पर ये बीमारी बच्चों में भी देखी गई है। इलाज बच्चों के लिए भी बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा है। बच्चों में एक स्पेशल हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम स्टेरॉइड जितना जल्दी कम कर सकें, कम करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर बच्चों की लंबाई, बच्चों की हाइट, स्पेशली बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनको लुक्स का और इन सब चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है। तो उनकी हड्डियां खराब ना हो, इन सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। पर हाँ, ये बच्चों में हो सकती है। इवन 2-2 साल, 3-3 साल, 4 साल के बच्चों में ही देखी गई है बीमारी। पर ज्यादा ये 30 से 40 वर्ष की उम्र की लड़कियों में ज्यादा देखी जाती है। फेसबुक पे भी सवाल पूछ रहे हैं क्या लोग? उस पे भी देख रहा है कोई? वहां कुछ कमेंट्स आ रहे हैं? लोकेश जी? जॉली, अच्छा क्वेश्चन है। रिकवरी के चांसेस, जैसा मैं बता रहा था कि हम लोग भी पहले, अगर सच कहूँ तो मन में एक डर था कि क्या ऑटो इम्यून बीमारी वाले लोगों को कोविड ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्या। पर हमने देखा कि लगभग जैसा जनरल पॉपुलेशन में हो रहा है, हमें बीमारी उसी रेट पर, उसी रिकवरी रेट, उतना ही खतरे के साथ या उतना ही कम खतरे के साथ देखने को मिली है। जरूरी बस ये है कि आप अचानक से दवा बंद ना कर दें डर के मारे कि कोविड कभी भी हो सकता है, मैं दवा बंद रखूं। क्योंकि अचानक से दवा बंद कर देंगे तो बीमारी बढ़ सकती है, वो ज्यादा नुकसान दे देगी। इसलिए हमेशा अपने रोमेटोलॉजिस्ट से सलाह मशवरा करके डिसाइड करें दवा कब देनी है, कम करनी है, नहीं करनी है, वो उन्हें डिसाइड करने दें।
वैक्सीन, हाँ वैक्सीन दी जा सकती है, क्योंकि ये जो भी वैक्सीन अभी तक अपने इंडिया में आई है, ये दोनों वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन लाइव नहीं है। सबसे ज्यादा रिस्क रहता है कोई लाइव टाइप की वैक्सीन हो, वो ना ली जाए। तो इनफैक्ट आप एक हमारी इंडियन रोमेटोलॉजी एसोसिएशन की वेबसाइट है, उस पे कोविड वैक्सीन ली जा सकती है कि नहीं, उसके बारे में हमने कुछ कुछ लिखा है। आप वहां जाके इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। इसका जो एग्जैक्ट लिंक है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ अभी। बाकी आप तो पुष्पा जी, रेड फेस के अलावा देखिए, सबसे चीज महत्वपूर्ण चीज समझने की क्या है, या सर फिर आपका खून की कमी होना। हाँ, वॉइस ब्रेक हो रहा है। ये सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था। अभी ठीक है? हाँ, तो पुष्पा जी, रेड फेस के अलावा कई और तरह के लक्षण हैं जिससे आप ये बीमारी समझ सकते हैं कि ये लूपस है। जैसे जनरली जो 20, 30, 40 साल की लड़कियां हैं, अगर उनके चमड़ी में बाकी जगह दाने आने लगे, मुंह में छाले आने लगे, जोड़ों में दर्द हो, बुखार हो जो बार बार इन्फेक्शन की जैसे ट्रीट किया जा रहा है लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, खून की कमी हो, प्लेटलेट्स बार बार कम होने लगे, ये सब चीजें हैं जो इशारा करेंगी कि लूपस हो सकता है। या फिर कुछ लोगों के यूरिन में झाग ज्यादा दिखने लगता है, या यूरिन में प्रोटीन आने लगता है, या यूरिन में, हम खून को आरबीसीज बोलते हैं, आप यूरिन का रूटीन टेस्ट कराएंगे किसी कारणवश, उसमें बार बार आरबीसीज आ रहे हैं, तो वो भी लूपस हो सकता है। सर अगर डिजीज अर्ली कंडीशन में डायग्नोस हो जाती है और ट्रीटमेंट सही जगह मिल जाता है, तो इज इट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोथ? बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब पहले, आज से 20 साल पहले हम ये बोलते थे कि 15-20% लोग को कुछ ना कुछ 10 साल के अंत में हो जाता था, जिससे रिकवरी होना बड़ा मुश्किल होता था। आजकल दवाइयाँ इतनी अच्छी आ गई हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, आप ऊपर भगवान से जितना कुंडली में लिखवा के आए हैं, हम कोशिश करते हैं उतने में ही ऊपर जाएँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर हो गई है पहले से। हाई प्रोटीन डाइट बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एग भी खा सकते हैं। खाना पौष्टिक रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। कोई भी चीज़ एक्सेस में खाएँगे तो वो तो वैसे ही नुकसान करती है। ध्यान किस बात का रखना है कि सब तरह का पोषण मिले और आप मोटे ना होएँ, क्योंकि मोटापा के अपने अलग नुकसान हैं। क्योंकि लूपस क्या करता है, आजकल इलाज इतना अच्छा हो गया है कि लोग आराम से, अगर 80 साल जीना है, 70 साल जीना है, जीते हैं। पर लूपस की वजह से धीरे-धीरे आगे जाके उम्र के साथ जैसे बाकी लोगों को हार्ट अटैक की संभावनाएँ बढ़ती हैं, सी होने लगती हैं। तो इसीलिए अगर हम ज़्यादा मोटे होने लगेंगे तो आगे जाके हार्ट अटैक और इन सब की प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है। तो वो एक चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है खाने में। सर एक पेशेंट का क्वेश्चन है, उनका मूड स्विंग बहुत फास्ट हो रहा है, तो ये डिप्रेशन इंडिकेशन दे है कि कुछ और है? ये डिजीज से रिलेटेड है, कुछ और है साथ में सर? बिल्कुल। तो देखिए, एक्चुअली क्या है, लंबी बीमारी होने की वजह से कई सारी परेशानियाँ मरीज़ को झेलनी पड़ सकती है। एक तो दवा लेते-लेते थक जाते हैं, जैसे मुझे थायरॉइड है, कभी-कभार मैं दवा लेना भूल जाता हूँ। तो जब अगर हमें लंबी दवा लेनी पड़े या बार-बार बीमारी का उतार-चढ़ाव हो, घर में अगर सपोर्ट सिस्टम या घर वाले बीमारी उतनी ढंग से नहीं समझ पा रहे, अगर आप काम पे जाते हैं या आपकी जो फ़ेवरेट चीज़ें आप नहीं कर पाएँगे, तो मूड स्विंग्स होना लाज़मी है, मतलब हो सकता है। जैसे मान लीजिए, अगर आपका हॉस्पिटल जा आप कोई भी काम कर रहे हैं, वो ही आप ढंग से नहीं कर पा रहे, तो एक मन में एक उदासपन, इरिटेशन आएगा। बार-बार छुट्टी लेनी पड़ रही है, उस वजह से आएगा। तो ये सारी चीज़ें तो हम बात करके बीमारी को कंट्रोल करके बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं।
बाकी लूपस खुद से भी मूड चेंजेस करवा सकता है, तो बीमारी को कंट्रोल करके साथ में अगर ऐसा लगे किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी है तो बिल्कुल भी नहीं शर्माना चाहिए, या साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। वो आपको रूमेटोलॉजिस्ट भी बता देगा कि हाँ, एक बार आप जाके उनसे सलाह मशवरा करें, कुछ टाइम दवा लेने की ज़रूरत है उसके लिए तो लें, और उससे आप फिर बेहतर हो सकते हैं। जॉली का सवाल है, बीइंग एन इम्यूनिटी डिसऑर्डर पीपल से इम्प्रूव योर इम्यूनिटी। जॉली ये पूछना चाह रही हैं कि ये इम्यूनिटी की बीमारी है तो इम्यूनिटी बेहतर करो, बट मैंने क्या बताया, यहाँ एक्चुअली आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा ही बढ़ी हुई है, कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है। उसको हम सहला फुसला के ये कहना चाह रहे हैं, भाई शांत हो जाओ, इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो बात आप पूछना चाह रहे हैं, वो एक्चुअली इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं। लोग ये जो एडवाइस देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि आपको इन्फेक्शन ना बढ़े, क्योंकि इम्यूनिटी कम होना और ज़्यादा होना दोनों खराब है। दवाइयाँ देंगे तो हो सकता है इम्यूनिटी कम भी हो जाए, तो उसलिए आपको इन्फेक्शन से बचना ज़रूरी है। अब रही बात इम्यूनिटी बढ़ाने की, सही मायने में कहूँ तो इम्यूनिटी बढ़ाने जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। मतलब आप इम्यूनिटी बढ़ा के क्या करना चाहते हैं? ऑटोइम्यून बीमारी करना चाहते हैं? नहीं ना, इम्यूनिटी बढ़ाने का मतलब है हमें बैलेंस बनाना है इम्यून सिस्टम का। इम्यून सिस्टम का बैलेंस कैसे बनेगा? अच्छा खा के, अच्छा पोषण करके। और बाकी बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिस चीज़ पे विश्वास करते हैं, वो करते हैं, तो उससे ऑटोमैटिकली माइंड में, बॉडी में एक पॉज़िटिविटी आती है। अब जैसे सर्दियों में मैं भी सोचता हूँ, हाँ, च्यवनप्राश खा के हाँ, अच्छा लग रहा है, मेरे इन्फेक्शन कम हो रहे हैं, सर्दियाँ कम हो गई, तो हाँ, बिल्कुल खाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना? पर कोई चीज़ में अगर डाउट हो कि किसी ने बोल दिया कि केले को उतार के ज़मीन में गाड़ के और फिर निकाल के खाओ, इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। तो एकदम उल्टी-सीधी चीज़ें भी नहीं करनी है, बट कुछ चीज़ें नॉर्मल हैं जो आप आराम से कर सकते हैं, बस अपना पोषण अच्छा रखें। सर पेशेंट ने दवाई लिया, आपसे आया, हुँ, कुछ दिन वो ठीक रहा, उसको लगा कि हुँ, एकदम हुँ, ठीक हूँ मैं, तो हुँ। ऐसा कोई सिम्टम्स जो उसको वापस से रिविजिट करना चाहिए या फिक्स शेड्यूल रखना चाहिए मिलने के लिए वापस से? हाँ, तो जो आपका जो शेड्यूल है ना, वो आपका रूमेटोलॉजिस्ट बताएगा। तो शुरू में क्या होता है, बीमारी कितनी तेज़ है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो एक बार जब बीमारी कंट्रोल आ जाती है ना, तो हम हर 3-3 महीने में बुलाना चालू कर देते हैं, और एकदम बहुत अच्छी फर्स्ट क्लास बहुत बढ़िया चल रही है, रिपोर्ट्स भी सब ठीक आ रही है, तो फिर हम 6-6 महीने में बुलाना चालू कर देते हैं। और फिर हम धीरे-धीरे क्या करते हैं, अगर मान लो 3 दवाइयाँ चल रही हैं, तो हम 3 से 2 करने की कोशिश करते हैं, 2 से फिर 1 करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा इसमें एक प्रयत्न रहता है। तो उस हिसाब से आपको शेड्यूल के हिसाब से बुलाया जाता है। कुछ लोगों को हमें हर 2-2 हफ्ते में भी बुलाना पड़ता है। ये वो वैक्सीन वाला लिंक है जिसमें आप जो ये लोग इसको जाके विज़िट कर सकते हैं। और ये कोविड गठिया रोग में क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए, उससे संबंधित भी हमने एक पूरा आर्टिकल वेबसाइट पे डाल रखा है, तो वो भी जाके आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। बस दिक्कत ये है कि ये वाला जो लेटेस्ट वाला है, वो अभी अंग्रेज़ी में है। हम इसको कोशिश कर रहे हैं हिंदी में ले आएँ ताकि सब लोग इसको पढ़ के समझ पाएँ कि ये भी मैंने ही लिखा है, ये दोनों आर्टिकल मेरे ही लिखे हुए हैं कोविड के बारे में, कोविड और रूमेटोलॉजी। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत ज़बरदस्त आपने ये आर्टिकल लिखा है। अब जैसे ही हिंदी में छपेगा तो इसको व्हाट्सएप थ्रू और बाकी मीडिया के थ्रू बिल्कुल। भी इसको पब्लिसाइज करेंगे सो दैट पीपल कैन रीच आउट इट। हुँ, हुँ। एक सवाल और आया है, टोटल रिकवरी। तो जैसा मैं शोएब समझा रहा था कि 6 महीना, साल भर, क्या लक्षण है, एक तो उस पे निर्भर करता है। जैसे मान लो किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, तो किडनी की प्रॉब्लम में मैं चाहूँगा एटलीस्ट 2 से 3 साल बीमारी एकदम शांत रहे, या कुछ लोग इवन 5 साल तक शांत रखना चाहते हैं उसको, और फिर धीरे-धीरे करके दवाइयाँ, इन 5 साल में धीरे-धीरे दवाइयाँ कम करते हैं। तो रिकवरी तो आपकी 3 महीने, 6 महीने में हो जाती है, पर दवा से छुटकारा इतनी जल्दी नहीं मिल पाता है, क्योंकि शरीर को भी समझाया है, शरीर को बोला है कि कम होगा धीरे-धीरे, तब फिर हम मुझे लूपस का पता चला है, तब से लूपस में प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रही हूँ और एंटीबॉडीज़ का इंजेक्शन ले रही हूँ, ये कंट्रोल में आ जाएगी। हाँ, तो बेटा ये जो अगर बीमारी कंट्रोल में है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल एक रूल है, अगर 6 महीने तक बीमारी एकदम शांत है,
तो आप आराम से जाके प्रेगनेंसी करिए। बच्चे पे, माँ पे लूपस का असर होने की संभावनाएं कम हो जाती है, बच्चे की ग्रोथ बढ़िया हो सकती है। 2-3 चीज़ों का ध्यान और रखना पड़ता है। अपने आप रूमेटोलॉजिस्ट, गठिया रोग विशेषज्ञ से पूछ लें, इनमें से कोई दवाइयाँ ऐसी तो नहीं है जो प्रेगनेंसी को में नुकसान करे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्रेगनेंसी के दौरान बीपी देखना, एक पेशाब की जाँच होती है, यूरिन रूटीन माइक्रो जिसे हम बोलते हैं, जो हर लूपस वाला आजकल समझता है कि ये यूरिन रूटीन का क्या महत्व है। ये हर 1 महीने में कराना ज़रूरी है। और कुछ लोगों को जिनको पहले अबॉर्शन हो चुके हैं या बच्चा गिरा है और वो अगर लूपस या उससे संबंधित कुछ एंटीबॉडीज होती हैं उसकी वजह से गिरा है, तो उसकी स्पेशल दवाइयाँ चालू कर दी जाती है प्रेगनेंसी में, ताकि प्रेगनेंसी का सक्सेस रेट हम ठीक कर सकें। सर आज की वार्ता संवाद ऐसा लग रहा है कि डिजीज के अलावा, पेशेंट के अलावा लोगों के लिए भी जाएगा, क्योंकि बाकी लोगों से जब बातचीत में जाएगा तो लोग समझेंगे ये बीमारी है, इसका इलाज है। हाँ, और सबसे हाँ। बड़ी बात है कि राजस्थान में एसएमएस में डॉक्टर भी है। हाँ, तो इसीलिए मतलब अगर क्योंकि हम मतलब ये बात आप अपन सब समझते हैं, दवाइयाँ थोड़ी महँगी है, टेस्ट कराते-कराते मरीज़ थक भी जाता है। तो एसएमएस में ये फ़ायदा है कि आपके टेस्ट फ्री हो जाते हैं, थोड़े पैसे वहाँ बच जाते हैं, कुछ दवाइयाँ अंदर फ्री में मिल जाती हैं, तो ये फ़ायदा रहता है। हार्ट, किडनी और ब्रेन, लिवर में हाँ, साथ में हो सकता है, बट बहुत रेयर ऐसा होता है कि सारे के सारे शरीर में जितने ऑर्गन है एक साथ आ जाएँ। अगर 3 या 4 जगह एक साथ आया भी है, तो एक चीज़ अच्छी क्या है, एक ही दवा से चारों का इलाज हो जाएगा। तो हार्ट के लिए भी वही दवा देते हैं हम जनरली, किडनी के लिए भी वही देते हैं, ब्रेन के लिए भी वही देते हैं। पर हमेशा कोई इन्फेक्शन या कुछ है तो नहीं, वो देखना पड़ता है। सर डिजीज फोटो सेंसिटिव है, हाँ, तो फोटो जो इसीलिए धूप में। हाँ, जो टीवी पे अभी जो ऐड आ रहे हैं कि ये क्रीम लगा के आप फोटो सेंसिटिविटी से बच सकते हैं, या हाँ। एनी एनी ऐसे, ये क्रीम कुछ काम करती है सर, हाँ, या तो ये बस? देखिए मैं आपको बताऊँ, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो जनरली इसमें जो क्रीम यूज़ करनी होती है, उसमें एक शब्द लिखा होता है वहाँ पे एसपीएफ, व्हिच इज़ सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो जनरली हमें 30 या 50 से ऊपर वाला जो एसपीएफ वाली क्रीम है वो खरीदनी चाहिए। लेकिन मैं ज़्यादातर पेशेंट्स को क्या बोलता हूँ, क्योंकि वो जो क्रीम है वो उनकी लगभग 1 महीने की दवा के बराबर उसका पैसा लग जाता है। तो उससे अच्छा क्या है, एक छतरी खोलो, छाते में निकलो, डायरेक्ट धूप नहीं पड़ेगी, दिक्कत नहीं होगी। सबसे सस्ता उपाय। जो खरीद सकते हैं वो क्रीम लगा के निकलें। जब भी निकलना हो धूप में, आधे घंटे पहले क्रीम लगा लें, 6 घंटे तक उससे बचाव रहता है। 6 से 8 घंटे तक। किसी और का कोई क्वेश्चन है? बेटा मिस्ड अबॉर्शन है तो वो कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप आपका उसके लिए दवा चल रही होगी। अगर मेरे से ही आपका इलाज चल रहा है तो आप मेरे से इसके बारे में और ओपीडी में पूछ सकते हैं जब अगली बार आएंगे। आई थिंक सबको अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया है काफी। थैंक यू सो मच तो सर। ये न्यू ईयर के जस्ट स्टार्टिंग में ही आपने हेल्थ के बारे में भी ज्ञान दे दिया, बिकॉज अभी मुझे ऐसा लगता है पहले के कंपैरिजन में ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं लोग हेल्थ से रिलेटेड। देयर विजिट मस्ट बी इंक्रीजिंग टू द कंसल्टेंट सो दैट अच्छे से रह पाए। और हम तो ये सोचते हैं कि जो लास्ट गया है साल, इस साल में सब कुछ स्वस्थ फ्रैक्शन ऑफ रहे। पेशेंट कम हो, बीमार कम हो। सही बात है, हम भी यही उम्मीद करते हैं। सबसे अच्छी चीज है कि सर सबने क्वेश्चन पूछा। सर हमारा जो स्टार्ट हुआ था वो 18 पार्टिसिपेंट से था, अभी 32 पार्टिसिपेंट हैं। और फेसबुक पे क्वेश्चन नहीं है बट लाइव दिख रहा है फेसबुक साइट में भी कि वहां पे भी ज्वाइन किया है। मैंने भी जस्ट अभी चालू होते वक्त ही अपने पेज उस पे डाला था, ओके। तो पता नहीं वहां भी कुछ लोग एंड देख रहे हो शायद। सो 2-3 ग्रुप और में भी अभी शेयर किया है। और हम्म, सब आप सबके लिए जानकारी के लिए कि ये जो अभी सर का जो डिस्कशन है, अगर आपको किसी को दोबारा सुनना है तो भी हम इसको वीडियो रिकॉर्ड करके उस पर भी डालेंगे वापस से। सो ये भी आपको हमेशा के लिए दिखता रहेगा, सर के फेसबुक पे भी दिखेगा और इस फेसबुक लाइव पे भी दिखेगा। अगर ठीक। आपका सबका कोई क्वेश्चन नहीं हो तो आई थिंक समापन की ओर जाया जाए, बिल्कुल। क्योंकि सर का भी कुछ पेशेंट रहे होंगे पीछे, टाइम होगा, बड़ी मुश्किल से समय निकाला है इस काम के लिए।
लोकेश सर, आपका क्लोजिंग वर्ड्स कुछ? I'm audible na? Rajaram Yes ji, sir, I'm yes sir. audible. Yes Yeah. sir, yes sir. Can I start? Yes sir, yes sir. Yes, sir. Thank you, Rajaram sir. I would like to thank, on behalf of Navdeep Singh India Foundation, to Dr. Avinash Jain for presenting such a valuable, excellent, and informative session. I would like to thanks to Rajaram sir for organizing this event as moderator, and is always. I would like to thanks to our NTI Foundation entire team, our foundation, Dr. Mayank Tiwari, for the concept of this event, Dr. Shashank Sharma and Mr. Ashutosh Sharma, Dr. Raghavan Patidar for organizing this event. I would like to thanks to our supporting partners, Disha Foundation, Samiksha Foundation, Shanti Foundation, and Look.